मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्ते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So welcome Saturday for our weekly discussion on the Bhagavad Gita. So today we are from the chapter 4, discussing from chapter 4, 6th verse. This chapter is called Transcendental Knowledge. Now इसमें interesting part है कि what is the today's का जो topic discussion है कि Krishna starts revealing कृष्णा कौन है, who is Krishna? Do you know who is Krishna? Supreme Personality of God. Okay. Supreme Personality of Godhead, Supreme Controller. Any more? Supreme Enjoyer. हाँ? Proprietor तो Supreme Controller मतलब इंदर. और क्या है कृष्णा? The Seeker and Father. And Yes. the अहम बीज प्रदापिता है, भगवद गीता में आता है. He is the originator of everything. Yes. So this verse today जो discuss करने वाले, today we are going to know who Krishna is. मतलब one of the forms that is going to be revealed. So this verse can be meditated. So when you go and see Radha Rasbihari का altar, so what do you feel? Do you see Supreme Controller? Do you see Krishna? How do you connect with him? Huh? Radha, yes. You see that way. Okay. Yes, so there are different ways of connecting. So today जो verse में सीखेंगे, you can actually connect with Krishna in that sense. कि when you look at Krishna, everybody has different views of it. तो क्या होता है कि there are some religions, उसमें क्या बोलते हैं एक ही भगवान है. सुना है कि नहीं, God is great. But how great he is, वो किधर described है? Which book? भागवतम. So Ramayana another the जगह है, मतलब पद्म पुराण उधर मिलेगा, मतलब there are descriptions of it. But कोई भी scriptures में God is great का वर्णन नहीं आता कि who is God, God कैसा है, क्या करता है, what are his activities. Not much is mentioned. है क्या? If I am wrong, please correct me. But है ऐसा कहीं mentioned है? नहीं. So today this verse we are going to discuss about Krishna एक अपना reveal करेंगे form. So are you ready? Yes. So I'll just read the shloka. अजो आपि सम अवया आत्मा भूतानाम ईश्वरो आपि सम प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठय संभवानि आत्मा मायया. ओके. अज अनबॉर्न, आपि ऑल्दो, सन बीइंग, सो, अवयया विदाउट डिटोरिएशन, आत्मा बॉडी, भूतात्मा of all those who are born, Ishvara the supreme Lord, Api although, Son being so, Prakritim in the transcendental form, Swayam of myself, Adhisthaya being so situated, Sambhavami I do incarnate, Atma Mayaya by my internal energy. So translation. So listen carefully, here translation is very nice. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. So I'll just repeat this. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. So first question, कोई बीच में से नहीं हाथ उठा के बोलना, इधर I किसको रेफर कर रहे हैं? Krishna. So I, this is a conversation Krishna is telling to Arjuna. So I is Krishna. Okay, I am unborn का मतलब क्या होता है? Born नहीं है. He is not. He doesn't take a birth. Okay. So I'll just tell you one thing about a philosophy. अचिंक्य भेद तत्व, उसमें क्या है कि simultaneous oneness and difference है. We are born. And why we are born? Because we have to, because of our karmas.
जो कर्मा करते हो उसके हिसाब से यू गेट योर नेक्स्ट बॉडी. एंड भगवद गीता में मेंशन किया है वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग यू रिमेंबर एट द टाइम ऑफ डेथ, वो आपको नेक्स्ट बॉडी बनती है. सो एंड अब लास्ट मोमेंट में क्या रिमेंबर करते हो, जो आप जिंदगी भर करते हो. और उसका एक इजी टेस्ट है, कभी कोई ऐसा फ्राइटनिंग सिचुएशन आया तो क्या इमीडिएटली याद आता है, समझ जाना दैट्स व्हाट यू आर रिमेंबरिंग ऑल योर लाइफ. इट्स अ वेरी इजी टेस्ट टू डू. कभी भी ऐसा फ्राइटनिंग सिचुएशन आता है ना 1 सेकेंड के लिए, एंड यू कैन ईजिली रिमेंबर कि मैंने ज़िंदगी भर क्या सोचा है. सो वी हैव टू टेक बर्थ, बट कृष्णा डजंट हैव टू टेक बर्थ. He still comes, but he comes in his transcendental form. That is the meaning. He is unborn. So when you see Radha Ras Bihari, you can also look at this angle also. He is not unborn. He comes out of his own will. Do we come out of our own will? ये body हमने अपने choose किया है, ये हमने कर्मा के अनुसार मिला. So we are always, in the flux of karma. Krishna is not in that sense. So सबसे बड़ा वही होता है ना कि there are a lot of commentators on Bhagavad Gita. उसमें बोलते हैं कि कृष्णा भी was forced to take a body. एक बहुत बड़ा डिबेट है कि भगवान का फॉर्म है कि भगवान का फॉर्म नहीं है. सो डज गॉड हैज अ फॉर्म, एंड सम से गॉड डजंट हैव अ फॉर्म. सो बट बाय दिस श्लोका वी नो कि ही टेक्स अ फॉर्म, मतलब ही कम्स इन हिज ओरिजिनल फॉर्म. सो ही हैज अ फॉर्म, एंड इस फॉर्म अगर आप भागवतम पढ़ोगे तो इट्स कृष्णा. उससे लाइट एफिशिएंट होती है, जो बॉडी से आती है वो ब्रह्म ज्योति बनती है. एंड उसके बाद देन यू हैव द डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम्स एंड ऑल, वो एक अलग टॉपिक है, बट जस्ट टू गिव यू सम ग्लिम्स. सो ऑल्दो आई एम अनबॉर्न एंड माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटोरिएट्स. आवर बॉडी डिटोरिएट्स और नॉट, बट कृष्णा's बॉडी नेवर डिटोरिएट्स. एंड ऑल्दो आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, बट ही स्टिल अपीयर्स. ही डजंट हैव टू कम, बट ही कम्स बिकॉज वी कैन गेट अट्रैक्टेड टू कृष्णा, or we can know about him, we can know about his pastimes. Otherwise क्या होता है कि how will you meditate? जैसे कि जैसे मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, वेरी फेमस, और ट्रम्प है. सो ट्रम्प बोलोगे, ट्रम्प की क्वालिटीज़ क्या है? एनीबडी कैसे ट्रम्प के बारे में सोचते तो क्या याद आता है? ही इज एग्रेसिव, ही इज ब्लंट टॉक करने में. That's his quality. Similarly, Krishna की qualities क्या है? He is unborn. He has this transcendental body, and he comes in that transcendental body to give pastimes, or to engage devotees in his service. और उसके आगे नेक्स्ट वर्स में आएगा कि बहुत फेमस है वो है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, to kill the miscreants and all. That is also one of the activities of Krishna. So that's what this verse is saying. So whenever you have doubts, और कोई भी आर्ग्यूमेंट करते हैं ना भगवान तो निराकार है, साकार नहीं है, तो यू कैन एक्चुअली कोट दिस वर्स, 4th chapter 6th verse. ही सेज कि आई कम इन माई ओरिजिनल फॉर्म. सो और भगवान का ओरिजिनल फॉर्म क्या है? सच्चिदानंद. इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, क्लियर? फुल ऑफ एटर्नल ब्लिस एंड हैप्पीनेस, एटर्नल नॉलेज एंड ब्लिस, सॉरी. सो एक और चीज़ है इनका ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में कि इफ यू रीड भागवतम, उसमें मेंशन है कि ही हैज़ द सेम फॉर्म देयर, एंड इवन वी हैव अ ट्रांसेंडेंटल बॉडी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बट स्लीपिंग स्टेट में, एंड दैट्स व्हाई वी आर कम देयर. सो व्हेन वी गो बैक वी गेट दैट ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म. सो दैट इज व्हाई वी आर चैंटिंग कि आवर कॉन्शियसनेस गेट्स प्योर्ड एंड वी गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. बिकॉज मटीरियल वर्ल्ड को, इसको इस श्लोक को क्या बोला गया है? दुखालयम अशाश्वतम, तो फुल ऑफ मिजरी. And the spiritual world में there is happiness. So there is a transcendental body, nothing. You don't have to work a job. You don't have to have this. Body doesn't get old. So that is there. Clear? I read the purport. मैं थोड़ा break करके purports पढ़ूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा वाला है. तो I'll have to थोड़ा break करके we will discuss. Purport. The Lord has spoken about the peculiarity of his worth. Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many past births, whereas a common man cannot remember what he has done a few hours before. If someone is asked what he did exactly at the same time one day earlier, it would be very difficult for a common man to answer immediately. So Krishna knows his births clearly, and we don't know that. कई लोग पूछते क्यों किया ऐसा, है ना, कि हमें भी रिमेंबर करना. सो इमेजिन you will keep having fights with everybody कि तूने मेरे को प्रीवियस लाइफ में ये किया था, है ना.
So there is this story Bhishma Pitama की कि भीष्म पितामह वॉज लाइंग ऑन बेड ऑफ एरोस. उनको अपने 100 जन्म याद थे. तो उनसे पूछा गया कि मेरे को ऐसा, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे को ऐसी सज़ा मिली है कि मैं एरोस के बेड में सोया हुआ हूँ. तो ये सेड तुमने अपने 105, तो कृष्णा नहीं हो, तो कृष्णा वॉज देयर, अर्जुन, एवरीबडी वॉज देयर. तो कृष्णा सेड कि तुमने 105th अपने बर्थ में यू एक्चुअली हैड दिस हैबिट, जो होता है ना, एक घास होता है, यू यूज्ड टू प्रिक एंट्स इन द बॉडी. तो उसका कार्मिक रिएक्शन तुमको मिल रहा है. एंड दैट्स व्हाई ही वाज इन दैट स्टेट. बट ऑल्दो ब्लिस बिकॉज डिवोटी थे एंड ऑल दैट, बट दैट इज हाउ इट इज. यू नेवर नो कि व्हाट इज देयर हैपनिंग. दैट्स व्हाई वी कीप कि कितना कर्म कटे, एकादशी रखते हो, यू गेट द बेनिफिट्स एंड ऑल दैट. व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि यू डोंट नो व्हाट कर्मास यू हैव डन. बिकॉज हम लोग 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ में घूम के आए यहाँ पे. अच्छा, किसी को पता है ह्यूमन बर्थ कैसे मिलता है? काऊ के बाद आता है. एक है, 3 है उसमें. एक काव है, सो काव, टाइगर एंड मंकी. उसके बाद यू गेट दैट ह्यूमन बर्थ. देन द भागवत. और ऑब्वियसली अगर डेमिगॉड्स वांट टू कम, दे कैन कम डायरेक्टली, बट इट्स जस्ट दैट की जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. इट मस्ट बी ऑर्डर ना, लाइक आई थिंक ह्यूमन के पहले काऊ है, उसके नहीं, तो तीनों में से हो सकता है. सो काव इज मोर अ मोड ऑफ सात्विक, टाइगर पैशन एंड मंकी इग्नोरेंस. बट एग्जैक्टली यू कांट मैप इट कि काव से ऐसा होगा, ऐसा होगा. इट जस्ट फॉर कि यू शुड नो. सो वी डोंट रिमेंबर आवर प्रीवियस बर्थ्स, and that's why forgetfulness is the nature. You keep forgetting things, but Krishna doesn't forget everything. He knows every well, and he is happy in his Vrindavan, playing the flute and all. So that's it. Any questions here? So we'll just study here. Yeah. So ये लाइफ में हम लोग बहुत बार बाय मिस्टेक बहुत सारे लाइक मच्छर ये सारे मार देते हैं. तो what you will get that karma. You get that, but because जैसे भागवतम में एक ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट कि अगर कॉकरोचेस और स्नेक दिखे तो मार देना चाहिए. इन दैट सेंस तो यू कांट हेल्प, मतलब यू इवन इफ यू डोंट नो आपके बॉडी में अभी भी कितने सारे लिविंग एंटिटीज मर रहे हैं. या सो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो उसमें इतना वरी करना नहीं चाहिए. यू शुड डू वॉट एवर इज सेड, बिकॉज यू कांट कंट्रोल दैट ना. आप किसकी चीटी पे पैर रख दो डिस्पाइट यू डोंट वांट. जैसे जैनिज्म में होता है कि दे ट्राई टू टैप पे भी रखते हैं, मुंह भी कवर करते 6 बजे के बाद, बट स्टिल थिंग्स कैन हैपन. मतलब नोबडी कैन अवॉइड दैट. सो बेटर इज नॉट टू वरी एंड डू योर. हाँ, कॉन्शियसली किसी को नहीं मारना चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी सेड नो मीट ईटिंग एज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स. कॉन्शियसली नहीं तुम ये काम नहीं करोगे, बट अदरवाइज यू कैन, मतलब यू कांट हेल्प इट. होगा ही होगा. हाँ, तो कॉकरोच स्नेक्स का एग्जेम्पशन दिया हुआ है, मतलब अगर भागवतम में बोला गया. क्योंकि स्नेक अगर आ गया आपके पास, आप थोड़ी बोलोगे उसको कि राइट, इफ यू आर इन अ सिचुएशन वेयर इज गोइंग टू अटैक यू, तो थोड़ी आप उधर, राइट, एंड यू कांट फॉरगिव दैट. सो तो वो है, वरना अदरवाइज आपका फूड पॉइजनिंग हो जाएगा. फिर लुक एट इट, अगर नहीं करे, जैसे मंदिर में भी पेस्टिसाइड्स होता ही है, राइट, और नहीं करोगे तो क्या होगा ना, फूड में कंटामिनेशन आ जाएगा. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी. होता है, दैट्स कर्मा. कितने भी पाप. हाँ, वो एकादशी में भी होता है कि आप इफ यू फॉलो प्रॉपरली एकादशी, लॉट ऑफ योर सिंस आर एलिमिनेटेड. वो कर सकते हो. जैसे आई हैड 1 or 2 इंसिडेंट्स. एक बार मंकी आ गया था, मतलब ऑल ऑफ अ सडन इन द हाईवे हम लोग जा रहे थे, माई फ्रेंड वॉज ड्राइविंग, पर एक आ गया था, एक बार डॉग आ गया. यू कांट हेल्प इट, बट दैट हैपेंस. उसमें यू कांट कॉन्शियस, बिकॉज वो सामने से आ गया था. ड्राइविंग फास्ट, तो लाइक सामने से एकदम से आ गया आउट ऑफ नोवेयर, तो व्हाट कैन यू डू. सो दैट इज देयर. सो यू कांट अवॉइड दैट, बट देन ऑब्वियसली यू कैन डू भक्ति प्रॉपरली, तो दैट एलिमिनेट्स दैट. दैट्स व्हाई कृष्णा से सरेंडर करो मेरे को. बिकॉज अगर आप इफ यू डू अ मैथ्स ऑफ इट कि मैंने इसको मारा तो ये रिपेंटेंस क्या, ये रिपेंटेंस क्या, जो मनुस्मृति में दिया हुआ है, कैन यू डू ऑल दैट? पॉसिबल नहीं आज के एज में. सो इट्स बेटर कि यू फॉलो भक्ति एंड सरेंडर एवरीथिंग टू कृष्णा. दैट्स द बेस्ट ऑप्शन. क्लियर? ओके, आई रीड फर्स्ट.
If someone is asked what he did exactly at the same time one day earlier, it would be very difficult for a common man to answer immediately. He would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before. Yet men often dare claim to be God or Krishna. You know, बहुत लोग बोलते हैं ना मैं कृष्णा हूँ, मैं भगवान हूँ. कौन कौन मानता है भगवान हो आप? There are people who believe मैं कृष्णा हूँ, या जैसे मन yes. तो बहुत सारे ऐसे बोगस आते हैं. That's why we should read the Bhagavad Gita very carefully. अब भगवान हो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे जब जानते हो आप? सी इफ सपोज अ प्राइम मिनिस्टर वॉक्स इन विदाउट ए सिक्योरिटी, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? मोदी को कर पाओगे? से अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री लाइक फिजी आइलैंड्स, तो आप जानते ही नहीं हो उसको, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अनलेस सिक्योरिटी हो वो हो. तो सिमिलरली यू हैव टू रीड द भगवद गीता की टू नो कि भगवान कौन होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान कौन है. वरना बहुत लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं मैं भगवान हूँ, एक चमत्कार दिखा दे या कुछ बहुत सारे ऐसे हुए. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज हु इज गॉड. जो अनबॉर्न होता है देन यू कैन से कि ऐसे. जैसे डिवोटी रहा तो व्हेन यू सी डिवोटी ऑन द स्ट्रीट, सो जैसे तिलक विलक देखा तो क्या कहते हो? यू से हरे कृष्णा नेचुरली, राइट? व्हेन यू सी तिलक, व्हेन यू सी धोती, व्हाई? बिकॉज दैट इज द स्टेट एंड दैट्स हाउ यू नो कि द जेन्युइन डिवोटी. और आजकल तो सब वो फ्रॉड कपड़े भी पहन के घूमते हैं. इनफैक्ट बढ़ रहा है वो, कम नहीं हो रहा है. सो या, so one should not be, so Prabhupada भी वही बोल रहे हैं, one should not be misled by such meaningless claims. Then again the Lord explains his prakriti or his form. Prakriti means nature as well as swarupa or one's own form. The Lord says that he appears in his own body. He does not change his body as the common living entity from one body to another. अच्छा, तो कृष्णा जब का जन्म हुआ था, कितनों को याद है? स्टोरी याद है? कृष्णा का जन्म हुआ था तो कैसे अपीयर हुए थे? 400 फॉर्म. एंड देन बोला था कि अपना ओरिजिनल फॉर्म दिखाओ. वाई कृष्णा कंसील्स हिज ओरिजिनल फॉर्म? द क्वेश्चन इज कि कृष्णा अपना फॉर्म क्यों कंसील करते, दिखाते नहीं है? वाई? परप्लेक्स हो जाते हैं ना लोग, लाइक या डर जाएंगे. कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत है कृष्णा के इसमें कि वो रणछोड़ भी है, लड़ने गए थे, रेडी है, आर्मी भाग गए और गए रुक्मिणी के पास. तो देयर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज, इसलिए ही डजंट रिवील. एंड ओनली बाय द मर्सी ऑफ यू नो ग्रेट डिवोटीज दैट वी कम टू नो अबाउट कृष्णा एंड हिज ग्रेट क्वालिटीज. तो इसलिए ना, जैसे फॉर गॉडीय वैष्णविज्म जो बोलते हैं कि द पाथ दैट वी फॉलो, तो उसमें द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इज कि राधा कृष्णा पास टाइम्स भी यू नो इज एक्सेप्टेड और यू नो इज डिस्कस्ड अबाउट. नॉर्मली ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट कितनों के पास कृष्णा बुक है? कितनों ने पढ़ी है कवर टू कवर? तो कृष्णा बुक जब प्रिंट हुई थी ना प्रभुपाद ने, तो उसमें सब डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है. एंड इट्स नॉट एडिटेड इन दैट सेंस कि कुछ कंसील किया प्रभुपाद ने. तो उसमें क्लियर कट बताया हुआ है. एंड दैट्स व्हाई इट्स सो मर्सीफुल. इफ यू रीड दैट बुक, यू नो प्रभुपाद ने यही श्लोक पे लेक्चर दिया था न्यूयॉर्क में. तो ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस कि अगर कृष्णा बुक या भगवद गीता किसी ने पढ़ ली एक बार, सो विल पक्का बिकम अ डिवोटी. सो दैट कृष्णा बुक में भी इफ यू सी हैज रिवील्ड रासलीला, पास टाइम्स एंड एवरीथिंग हैज बीन रिवील्ड. 90 स्टोरीज है उसमें फ्रॉम द श्रीमद् भागवतम. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि वो कृष्णा बुक में प्रभुपाद जानते नहीं थे मैं कितना जीऊँगा. तो भागवतम पे जब कमेंट्री लिख रहे थे तो ही डिडंट न्यू. तो इसलिए उन्होंने 10 कैंटो का एक समराइज वर्जन कृष्णा बुक में बनाया. सो इफ पॉसिबल एक स्टोरी रीड कर लो. उसका ऑडियो बुक फॉर्मेट भी है, ऑनलाइन ढूंढ लेना, मिल जाएगा. सो देन यू कैन रीड, एटलीस्ट प्ले कर देना व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. सो इट्स वेरी नाइस कि उसमें प्रभुपाद जी ने काफ़ी क्लियरली बताया इसमें कि यू नो द रासलीला पास टाइम एंड अदर पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड. सो दैट वे दिस इज द ग्रेट कि वी नो अबाउट कृष्णा वेरी इन डिटेल. सो व्हेन यू रीड द कृष्णा बुक आपको सब पता चल जाएगा कृष्णा की लीला क्या है. सो लेगे जिसके पास है, पढ़ोगे क्या 1 महीने में? वी कैन हैव अ टेस्ट देन, टेस्ट और कॉन्टेस्ट चलेगा? कृष्णा बुक पे टेस्ट. Sure. I'll read it. He does not change his body as a common living entity changes from one body to another. The conditioned soul may have one kind of body in the present birth, but he has a different body in the next birth. In the material world, the living entity has no fixed body, but he transmigrates from one body to another. The Lord, however, does not do so.
Whenever he appears, he does so in the same original body by his internal potency. In other words, Krishna appears in the material world in his original eternal form with two hands holding a flute. He appears exactly in his eternal body uncontaminated by the material world. So कृष्णा में आप देखोगे, कभी कृष्णा की ओल्ड पिक्चर देखी है? Whatever paintings are available. Yeah, so because he's always in his eternal form, so he doesn't get old, क्योंकि उनका transcendental body है. Whereas बाकी सब everybody has to go through that cycle because you have got a material body. One more thing is कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है भागवतम में दिया हुआ है कि do you think this is the only planetary systems? So Krishna takes birth every planetary system में एक बार. So for a year planetary system में 5000 years back लिया था. And that's how he keeps going into every other planet. So once you are liberated, तो you actually go to that planet. जहाँ पे कृष्णा की लीला चालू है, वहाँ से you go to the spiritual world. So this is high philosophy, but just that I thought I'll share with you. It's not that कि आप directly spiritual world जाते you go to where Krishna's pastimes are happening. And then from there you go to the spiritual world. So I'll just read. Any questions here? So I'll just read. In other words, Krishna appears in the material world in his original eternal form with two hands holding a flute. He appears exactly in his eternal body uncontaminated by the material world. Although he appears in the same transcendental body and is Lord of the universe, it still appears that he takes his birth like an ordinary living entity. And although his body does not deteriorate like a material body, it still appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from boyhood to youth. But astonishingly enough, he never ages beyond youth. At the time of the battle of Kurukshetra, he had many grandchildren at home. Or in other words, he had sufficiently aged by material calculations. Still, he looked just like a young man, 20 or 25 years old. We never see a picture of Krishna in old age, because he never grows old like us, although he is the oldest person in the whole creation, past, present and future. So, एक इंटरेस्टिंग था कि किसी ने मेरे को पहले पूछा था कि विच केम फर्स्ट, चिकन और द एग? कौन आया पहले? हाँ? पर एग नहीं था तो चिकन कैसे आया? कौन? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, पर इसमें बहुत डीप फिलॉसफी है. बताओ, विच केम फर्स्ट, चिकन और एग? I read somewhere that an egg came first because like some with similar DNA as a chicken they mated and then पर उसके लिए चिकन चाहिए ना, तो एग. chicken egg आया sir, something like that. ओके. और सो यू से एग पहले आया. ओके, एनीबडी एल्स? विच केम फर्स्ट? द क्वेश्चन हियर इज कि चिकन पहले आया कि एग पहले आया? सो क्रिएशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? लीव असाइड दिस, क्रिएशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? लेट्स लुक एट द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन. चिकन एग इज जस्ट अ वेरी इजी एग्जाम्पल टू रिलेट टू. जैसे सीड नहीं होगा तो प्लांट कहाँ से आएगा, और प्लांट नहीं होगा तो सीड नहीं आएगा. सो हु क्रिएटेड स्टार्टेड दिस साइकिल? महाविष्णु से पहले कोई है? कौन? ब्रह्मा संहिता में पढ़ोगे कि ही प्रेड टू महाविष्णु ना, ही प्रेड टू विष्णु. फिर उन्होंने क्रिएट किया ना. हाँ, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया? He came out of the navel. हाँ, तो वो विष्णु को किसने क्रिएट किया? एक्सपेंशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? सो देर इज दिस ओरिजिनल, ओके आई जस्ट से कैन डिबेट हियर. देयर इज ओरिजिनल कृष्णा, देन इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसी. एक्सटर्नल पोटेंसी से सारे क्रिएशन स्टार्ट हुआ, मतलब फॉर विष्णु एंड देन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड. सो चिकन और एग में से स्टोरी है कि द क्रिएशन हैपेंड एंड दैट्स व्हाई द होल प्रोसेस स्टार्टेड. सो एटर्नली, इसलिए इसमें लिखा है ना, सी क्लियरली इज मेंशन ही नेवर ग्रोज ओल्ड लाइक अस. ये कृष्णा का डिस्क्रिप्शन है, प्रभुपाद इज मेंशनिंग इन द पोपट.
He never grows old like us, although he is the oldest person in the whole creation, past, present and future. So eternally Krishna was there. And then the expansion and then the everything started creating. So simultaneously create हुए थे. In that sense. वरना अगर आप लॉजिकली सोचो तो इट कांट हैपन ना. एक के लिए दूसरा चाहिए, दूसरे के लिए पहला चाहिए. बट फॉर अस, यू नो, इफ यू लुक एट फ्रॉम द वेदास पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज क्लियरली मेंशन्ड कि देयर वाज वन लिविंग एंटिटी विच वाज, एज वी अंडरस्टैंड, इज कृष्णा. वहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट हुए, वहाँ से इंटरनल पोटेंसी राधा रानी, एक्सटर्नल पोटेंसी विष्णु, है ना, एक्सपेंशन, देन एवरीथिंग हैपेंड. That's how whole this material world was created. Spiritual world, material world, everything was created. Clear? तो कोई पूछेगा अभी चिकन और एग में से पहले कौन आया? You can at least give him a description of a small glimpse. Agree, disagree? Okay, I'll just read it. Any questions here? Neither his body nor his intelligence ever deteriorates or changes. So this is description of Krishna. Neither his body nor his intelligence ever deteriorate or changes. Our intelligence changes. Deterioration होता है इंटेलिजेंस में as you grow old because obviously bodily, you know. But Krishna का description क्या है? He doesn't change. Therefore, it is clear that in spite of his being in the material world, he is the same unborn eternal form of bliss and knowledge. Satchidanand. Changeless in his transcendental body and intelligence. Factually, his appearance and disappearance is like sun rising, moving before us and disappearing from our eyesight. So so Prabhupada के purports आप जब स्टडी करोगे ना, तो he gives analogy. Analogy मतलब जैसे सन का एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं कि सन सेट होता है, इसका मतलब सन चले गया प्लैनेट से, इट्स सेटिंग, मतलब इट्स राइजिंग समवेयर एल्स. बट व्हाट डू वी परसीव इज कि नहीं, सेट हो गया, राइट? मतलब कि सन इज गॉन. एंड अगर कोई इंटेलिजेंट नहीं रहा, इफ यू डोंट नो साइंस, तो सिमिलरली विद कृष्णा, ही इज देयर, हियर, देयर, बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट बिकॉज वी डोंट हैव द आईज. और 10th चैप्टर में वो अर्जुन को आईज मिलती, 11th चैप्टर में, सॉरी. And then he says the full vision of Krishna. Factually, his appearance and disappearance is like sun rising, moving before us and then disappearing from our eyesight. When the sun is out of sight, we think that sun is set. And when the sun is before our eyes, we think that the sun is on the horizon. Actually, the sun is always in its fixed position. But owing to our defective, insufficient senses, we calculate the appearance and disappearance of the sun in the sky. And because Krishna's appearance and disappearance are completely different from that of any ordinary common living entity, it is evident that he is eternally blissful, knowledge by his internal potency, and he is never contaminated by material nature. So Govardhan का पास टाइम किसको याद है? So Lord Krishna, Indra got bewildered कि ordinary boy है, why they are not offering to me. So Krishna ने जो गोवर्धन हिल उठाया था, कौन सी उंगली पे उठाया था? Little finger in the left hand. We can also lift something like this. And the Brajvasis were लाठी डाल रहे थे कि supporting Krishna, I guess. And 7 days, 7 nights he was standing. हाँ, imagine you holding something for even a phone for 5 minutes ऐसा, कितना देर तक hold पाओगे? You can't do that, na? Right? So that is there. So we are same in quality, but quantity में there is a huge difference between us and Krishna. And that's what we got to understand. इसलिए when you talk about devotional service ना, तो बोलते surrender कैसे करना? Ego होता है अपना, हर एक का ego होता है कि मैं surrender क्यों करूँ किसी को? But once you know how great Krishna is, so we are just like a very small, minute particle in the whole of creation. Agree or disagree? So world का population कितना है? 800 crores, broadly 8 billion. और हम उसमें से कितना है? We are how many here? 20. We are just like minute. पर अपना ego कितना बड़ा होता है कि I am the center of this whole world. And because of that we are never able to surrender to Krishna. Because we think that we are the creator. And Krishna is how big, he has created this whole universe. Brahma, all the demigods, everything he has created. And still, he is ready to serve his devotee. He is ready to become Sarthi of Arjuna. जो कृष्णा जब ऑर्डर्स देते थे वॉर में, तो अर्जुना हैड टू किक जो होता है नी से टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द सारथी.
And Krishna was ready to do that for his, disciple or for his devotee. So what we are endeavoring for is Krishna's bhakti. And to get to that stage, to get the Lord of the universe, हम लोग थोड़ा try करते तो भी नहीं हो पाता है. So that's why we have to get to that stage, complete surrender. And that's what Krishna sees. Krishna sees कि कितना dedicatedly you serve him. जितना आपकी शक्ति हो. So रामायण में जैसे होता है ना, squirrel डाल रहा होता है grains of sand. And then Ram says कि हनुमान जो डाल रहा है, and both these, the service is the same. दोनों अपनी ability से पूरा डाल रहे हैं जितना हो सके. That's what we should try to endeavor. कि whatever abilities we have to use in Krishna's service. It's not that कि 24 temple में बैठना है तो that's service, because you can sit in the temple and think of outside. But whatever ability time you have, you should dedicate it to Krishna. Agree, disagree? प्रभु जी, मैंने सुना है कि लाइक लॉर्ड शिवा इज अनबॉर्न. उसमें बहुत कुछ है कि सदाशिव एक है, एक शिव है, एंड देन इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. बट ही इज ऑल्सो अ ग्रेट वेरी एलिवेटेड सोल. उसमें मतलब अलग अलग है. फिर ब्रह्म संहिता में देयर इज अ मेंशन ऑफ इट, द बुक में है ना, उसमें दिया हुआ है. सो उसमें एक सदाशिव है, एक शिव है, सम, तो देयर आर एलिमेंट्स टू इट. बट एनीवेज फॉर अस ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा. So he was the doorkeeper of the Ras Leela pastimes, Shiva, because he was like एकदम snake way है ना, तो so these are all. And even imagine, even अर्जुन के रथ पे किसका फ्लैग था? और हनुमान किसके अवतार है? रुद्र. And why कृष्णा के इसमें हनुमान जी के? It's all connected, so we shouldn't be differentiating. Obviously, we should know Krishna is supreme and all, but Sheshnag Lakshman थे. Sheshnag was Lakshman. I went to the place जहाँ पे शेषनाग में तपस्या की थी, एक बार ट्रैक में गया था. This is somewhere हेमकुंड साहिब करके on the way to Badrinath. So there is a Lakshman temple. तो शेषनाग ने वहाँ पे तपस्या की थी to get लक्ष्मण का अवतार. So I've been to that place. It's a very tough trek, but hey, there is a place there. तो शेषनाग एक लेक है वहाँ पे क्या, और सदारों का भी है वहाँ पे हेमकुंड साहिब. तो उसको लग के, तो एक्चुअली दैट वाज अ प्लेस वेयर शेषनाग मेडिटेटेड टू बी अ ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम. सो इसलिए उनको वो मिला. तो लक्ष्मण टेम्पल भी है बाजू में. एंड लोकल्स को पता है, बट इट्स नॉट वेरी पॉपुलर. इट्स मोर पॉपुलर एज हेमकुंड साहिब, क्योंकि रिसेंटली हुआ है. बट लोकल्स कम टू दैट टेम्पल लक्ष्मण का. Any other question? So the main point वही है कि what we are trying to do is in devotional service by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare. Our goal is to get Krishna, and Krishna is the creator of this whole world. Imagine meeting, this is a much more easier example, is meeting a top businessman or a top prime minister of a country. कितना difficult है मिलना. To get an appointment from Prime Minister Modi, how easy or difficult it is? You have to write to PMO आप किसी को जानते हो, फिर वो अपॉइंटमेंट मिलेगा 10 मिनट के लिए. And here we are trying to, Krishna gets attracted, surrendered to his devotees. मतलब एक बार तो he'll do anything for his devotee. वो करण को मारने के लिए वो रेडी हो गए थे, right? So that's what we are endeavoring for. So that's where our, at least जितना हो सके, we should try to go for, मतलब try it, और अच्छे से करो जितना अच्छे से भक्ति हो सकता है. Whatever is there in our thing, because what we are asking is the highest, right? Hare Krishna जब मंत्र chant करते हो, what? Please engage me in your devotional service, right? So that's why you have to follow this path of sadhana bhakti, because purification नहीं है ना. थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो ईगो आ जाता है, right? So that purification के लिए, that's why we are doing this sadhana bhakti. और साधना भक्ति के क्या है? ABCD. पता है ABCD ऑफ साधना भक्ति? ओके. These 4 things. Simple, ज़्यादा complicated process नहीं है. Association of devotees, attend the programs like this and be regular. B is reading the books. Srila Prabhupada ki, there are small books, there are big books. Any book you read, at least 2, 3, 5 pages, 10 pages, so read it. Book reading is very important because Prabhupada, even when he used to write, अपनी books read करते थे. He said it's not, I'm also getting inspired कि,
इज राइटिंग, नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू राइट. आज के डे एंड एज में इमेजिन विथ ऑल द थिंग्स इतना बुक्स राइट करना इज नॉट पॉसिबल. उस समय तो डिक्टाफोन पे वो बोलते थे. एंड देन सो मेनी बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट इट. सो बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. चैंटिंग तो इज योर डायरेक्ट टाइम विथ कृष्णा. चैंटिंग इज लाइक योर स्पेंडिंग टाइम विथ कृष्णा 1-to-1. क्योंकि कृष्णा के नाम में, फॉर्म में कोई अंतर नहीं है. सो व्हेन यू आर चैंटिंग यू आर एक्चुअली एसोसिएटिंग विथ कृष्णा. पर्सनल टाइम है. ऑल्दो फील नहीं होता है, बट वंस यू चैंट एंड प्रे देयर विल बी सम स्टेजेस विल यू एक्सपीरियंस दैट कि यू आर एसोसिएटिंग विथ कृष्णा. सो कभी कभी जस्ट टू गिव यू सम सेंस कि कभी आपने चैंटिंग करके एकदम ब्लिसफुल फील किया है. यू आर फीलिंग वेरी नाइस व्हेन यू चैंट नाइसली, अच्छे राउंड्स हुए. You know, when you do that, you feel very nice. क्या rounds है, दिन अच्छा गया. So that's where you have associate some glimpse of Krishna. कभी कभी chanting rounds करना ही मुश्किल हो जाता है. कब खत्म होगी माला, वैसा फील होता है. Sometimes it's very smooth, very easy. Sometimes it's very difficult. So there are some stages because you are not tasting. But अगर if you can get a sense कि I'm chanting with Krishna, and that is the most important activity in my day, then you'll get that. But उसका practice लगता है. Because we are not used to it. Because mind plays a trick. Mind बोलता है इधर है, ये काम बाकी है. होता है ऐसा चैंटिंग करते समय दुनिया के सारे काम याद आते हैं. हाँ, एंड यू आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. मतलब ये काम बाकी है, वो पेंडिंग है, उसका पेंडिंग है. सो द आइडिया इज वहाँ पे यू कैन कीप अ बुक एंड राइट दैट जो माइंड गेम खेल रहा है. सो ओवर अ पीरियड टाइम यू नो पैटर्न्स क्या आ रहे थॉट्स में. सो देन यू कैन फोकस मच बेटर. बट चैंटिंग ऑब्वियसली यू हैव टू डेवलप दैट, क्योंकि वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एंड दैट इज योर डायरेक्ट कनेक्शन विद कृष्णा. सो कृष्णा इज सो मर्सीफुल कि ही हैज गिवन यू इन द होली नेम. दैट्स व्हाई चैतन्य महाप्रभु emphasized so much on chanting the holy name. So because when he was going to forest of Jharkhand, even animals were chanting, dancing. Hare Krishna Maha. Imagine going to forest and tigers and everybody is dancing. So that was the potency of chanting the holy names. But we don't feel that obviously because हम लोग contaminated stage में हैं. But as and when we practice and follow the process, you will get that stage of happening. जैसे कीर्तन में आते हो तो कीर्तन में क्या होता है, जब बहुत सारे लोग साथ में करते हैं ना तो easily you can feel that effect. कि even if you have a very heavy day, आप जब कीर्तन में बैठते हो you feel that ना everybody is chanting तो you feel elevated. And just repeating the same thing again and again. ऐसा नहीं कुछ नया कर रहे हो. बट जस्ट यू फील. यही अगर आप रॉक म्यूजिक सुन के बैठो 1 घंटा, क्या होता है माइंड में? हैवी मेटल म्यूजिक. या कभी ड्राइव्स किया, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आप अगर हैवी म्यूजिक सुनते रहो 2 घंटे में आप सुन नहीं सकते हो. बट मंत्र सुनो यू विल स्टिल फील फ्रेश, बिकॉज दिस इज द रियल थिंग. सो करोगे चैंटिंग इवन इफ यू डू 1 राउंड, बट जस्ट थिंक कि ये 5, 7, 8 मिनट जितना भी टाइम लगता है करने को, इट्स फॉर कृष्णा, डेडिकेटेडली फॉर कृष्णा. ये स्लॉट उनका है. और उसमें भी ब्रेक कैसे करोगे? एवरी मंत्र यू चैंट ऑन द बीड. मतलब बस एक मंत्र में को अच्छे से चैंट करना है. जैसे वी कैन प्रैक्टिस दिस. सो ये मंत्र अभी जो हम चैंट करेंगे हरे कृष्णा का, विल जस्ट चैंट विद फुल फोकस ऑन कृष्णा. ट्राई करेंगे? ओके. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वन मोर टाइम ट्राई. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So when you chant with that dedication, you feel that. Feeling better? लेक्चर से बोर हो गए तो चलो ये. But this is how you should chant. Every beat में at least endeavor होना चाहिए, and then Krishna will give you strength. होगा possible? And D is that. Eating Krishna prasadam, offering everything what you can. और बाकी पता है कि क्या नहीं ऑफर करना. You don't have to tell. Indians को तो पता ही है कि no onion, no garlic and mushrooms. So that you can do. So any questions here? I read the puppet. The Vedas also confirm that the Supreme Personality of Godhead is unborn, yet he still appears to take birth in his multi-manifestations. The Vedic supplementary literatures also confirm that even though the Lord appears to be taking his birth, he is still without change of body. In the Bhagavatam, he appears before his mother as Narayana, the four hands and the decorations of the 6 kinds of opulences.
His appearance in his original eternal form is his causeless mercy bestowed upon the living entities so that they can concentrate on the Supreme Lord as He is, and not on mental concoctions or imaginations which the impersonalist wrongly thinks the Lord forms to be. So the impersonalist कौन होते हैं? वो बिलीव करते हैं कि कृष्णा नहीं बोल रहे अर्जुन को इन इज ओरिजिनल फॉर्म. ये एक ह्यूमन है, कृष्णा जो अर्जुन को बोल रहे हो ह्यूमन फॉर्म है, उसके अंदर जो है कृष्णा जो आत्मा तत्व है वो बोल रहा है भगवद गीता. सो दैट इज व्हाट impersonalists say, but what we believe is कि it was Krishna in his original form who is saying this. Now why this is so? बिकॉज कृष्णा ने अपने यही बॉडी में बहुत सारे जैसे गोवर्धन लीला हो गए, एंड देयर आर मेनी डांसिंग ऑन कृष्ण कालिया, कालिया सर्पेंट में देयर आर मेनी लीलाज जो कृष्णा ने मैनिफेस्ट किए, विच ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डिनरी उसके बाद कर सका है. इवन सोचना कि यू कैन लिफ्ट अ हिल, इमेजिन दिस, जस्ट क्लीन एवरीथिंग व्हाट यू नो, बट इमेजिन दिस, अ यंग बॉय लिफ्टिंग, 7-year-old बॉय लिफ्टिंग अ हिल, छोटा सा हिल भी कभी सुना है? मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लाइंग कहाँ से आया? रामायण से आया. वेपन्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? वेपन्स का जो कॉन्सेप्ट था कि व्हाट द ओल्डेस्ट हिस्ट्री जो मिलती है हमको, रामायण महाभारत ये सब में रिकॉर्डेड है. सो जैसे स्वीट डिश मोहनथाल, उसका रिकॉर्डिंग 2000 साल पहले का है. मोहनथाल तो खाई है ना सबने, तो उसका एक्चुअल रेसिपी 2000 साल पहले का दिया हुआ है. तो जो बोलते हैं ना कि नहीं है ये सब ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. इनफैक्ट आई जस्ट वेंट टू बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में भी 6 महीना इज ह्यूमन्स वर्शिप, 6 महीना नारद मुनि आके वर्शिप करते हैं. एंड देयर इज अ ज्योति देर. जो पुजारी जब टेम्पल बंद करते हैं, तो आज 16th है ना, कल टेम्पल क्लोजर है एट 9 o'clock इन द नाइट. तो जब टेम्पल बंद होगा तो पूरा सील कर देंगे उसको. एंड देयर इज अ लैम्प जो जलाते हैं वो लोग, और जब वो अक्षय तृतीया के दिन खुलेगा नेक्स्ट ईयर, तो वो लैम्प जलते रहता है. तो आज तो बिट ऑफ लोकल्स की आर्मी रहती है अराउंड द ईयर देयर. सो इंटरेस्टिंगली कि नारद मुनि आते, पता कैसे चलता है? होता ना, अभी थोड़ा डाउट तो हो गया है, तो एडजस्ट आते हैं, तो बोलते हैं बेल्स की आवाज़ सुनाई देती है अंदर व्हेन द टेम्पल इज सील्ड. सो इंडियन आर्मी इज आउटसाइड, तो बोलते हैं बेल्स का आवाज़ हमें सुनाई देता है. नोबडी इज अलाउड देयर एक्सेप्ट दैट कि वो बेल्स का शाम को आवाज़ सुनाई देगा उन लोग को. सो इवन इन दिस है जो बोलते हैं ना भगवान नहीं है, जब नारद मुनि इज रिटन देयर कि इट्स वर्शिपिंग 6 months ऑफ द ईयर, बट स्टिल वी डोंट बिलीव. इसको माइथोलॉजी बोलते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू नो द वर्ड माइथोलॉजी? सो ये मिथ्या से आता है. इज दिस मिथ्या? अगर नारद मुनि वर्शिप कर रहे हैं एंड एक्चुअली दैट रिचुअल इज स्टिल बीइंग फॉलोड टुडे. और उसका जो ज्योति जो होता है जब अक्षय तृतीया में होता है, तो लॉट ऑफ रश, बिकॉज वो देखने के लिए कि वो जलते रहता है. आई एम सम दोज हू डोंट बिलीव, वो बोलेंगे कि कोई ऑयल डाल दिया होगा लास्ट मिनट में ये, बट जब टेम्पल सील है तो कैसे होगा? सो द डे ऑफ ओपनिंग दे लुक एट दिस. सो दिस इज वाई दिस इज नॉट माइथोलॉजी, इट्स एक्चुअली हैपनिंग. बट जस्ट दैट व्हाट इज फेड टू यू, ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई साइंटिस्ट का स्टडी दिया, तो यू हैव टू ट्रस्ट ना कि ये बुक ओरिजिनल है जो पढ़ रहे हो आप, एक अच्छा पब्लिशर होगा, एंड यू नो कि इसने राइट पब्लिश किया होगा. दैट्स हाउ यू कम टू नो. बट व्हेन यू प्रैक्टिस दैट कि जो भी थीसिस उसने लिखा है तो वैसे ही. So similarly, when people start chanting Hare Krishna Mahamantra, do you see any difference in you by coming to the temple, Bhagavad Gita class attend करना? If you say to an ordinary person कि भगवद गीता क्लास करने में बहुत मज़ा आता है, do they agree or disagree? बोले क्या बोरिंग है ये, मतलब who is going to listen in this age? होता है सबको एक्सपीरियंस, अरे भगवद गीता सुनने में क्या मज़ा है. बट वेन यू लिसन टू कृष्णा स्टोरीज, जैसे बोलते हैं ना रसगुल्ला का डिस्क्रिप्शन आपको दो, ये टेस्टी है, वाइट है, स्पॉन्जी है, जूसी है, बनी. बट व्हेन यू हियर कृष्णास पास्ट टाइम्स, इवन इफ यू हियर यू गेट दैट टेस्ट. होता है कि नहीं होता है? व्हेन यू सी दैट सेम कृष्णा का स्टोरीज, लीला, कार्टून्स में देखो, टीवीज में देखो, दैट यू फील नाइस, बिकॉज दैट इज योर रियल पर्पस ऑफ लाइफ. तो जीवारे स्वरूप होए कृष्णा रे नित्य दास, दैट इज आवर रियल पर्पस इन लाइफ, टू बी एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा. Why? Because we are in small part of Krishna. That's why we like this. Agree, disagree? So any questions? I read further. The word Maya or Atma Maya refers to the Lord's causeless mercy according to Vishwakosha dictionary. So संस्कृत में ना there are many more dictionaries. कई लोग बोलते हैं कि संस्कृत पढ़ना चाहिए,
फिर तुम्हें भगवद गीता पढ़ना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज प्रभुपाद यूज्ड टू से कि संस्कृत का ग्रामर सीखने में 12 साल लग जाते हैं. नो इमेजिन दिस, ग्रामर सीखने में, देन उसका डिटेल्स में जाने में. So that's why it's much more practical to follow the process that Prabhupada has given and not get into too much into Sanskrit studies unless किसी को interest हो or wants to make a career in that. Otherwise, Prabhupada's का he was expert in Sanskrit and he has given us everything to read. So you don't have to get into that argument. वरना कई लोग बोलते हैं ना, नया मंदिर जाने शुरू करो तो बोलते संस्कृत एक्सपर्ट होना चाहिए, श्लोक उच्चारण करो, ये वो. नो, तो आर्ग्यूमेंट ये है कि श्लोक उच्चारण करना अच्छा है, बट उससे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए. बिकॉज मीनिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट ना. अगर आप श्लोक ऐसी जैसे होता है ना, वो बोलना नहीं चाहिए, पर जो पंडित लोग जो श्लोक उच्चारण करते रहते हैं फास्ट फास्ट, उसका मीनिंग नहीं पता होता, तो व्हेन वी सिट इन द पूजा वी डोंट नो ना क्या वो रीड कर रहे हैं. बट वंस यू नो कि हाँ ये सब बोल रहे हैं, तो देन यू हैव अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसलिए इट्स बेटर टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द श्लोकास ऑफ द भगवद गीता. देन इफ यू कैन रिसाइट इट इवन बेटर. बट मेन इज पहले आपको सब श्लोकास का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. उसके लिए भगवद गीता रीड करना जरूरी है. तो प्लीज आई जस्ट रीड. The Lord is conscious of all of his previous appearances and disappearance, but a common living entity forgets everything about his past body as soon as he gets another body. He is the Lord of all living entities because he performs wonderful and superhuman activities while he is on earth. Therefore, the Lord is always the same absolute truth and is without differentiation between his form and the self, or between his quality and body. A question may now be raised as why the Lord appears and disappears in this world. This is explained in the next verse. So जो famous वाला verse है next time करेंगे. So the key thing about this verse is कि Krishna is unborn. तो first time Krishna is telling about himself. ये 9th chapter में भी बोलता है. But why Krishna is revealing to Arjuna? If you look at this is in 4.4th verse कि you are my friend. So when you want to understand Bhagavad Gita, or you have to look it from Arjuna's point of view. And Arjuna was surrendered and a devotee of Krishna and friend था. He was not challenging Krishna कि तुम जो बोल रहे हो ऐसे ही बोल रहे हो, let me test it. He never did that. So whenever we are trying to understand this spiritual knowledge, we have to understand from a devotee point of view. Try it, test it, challenge कर सकते हो, but process follow करके, and then you show whether there is a effect happening or not. Otherwise, जो मुंडेन आर्ग्यूमेंट है, you'll never go ahead. जैसे if you look at in the महाभारत जहाँ पे भगवद गीता बोली गई थी, there were so many, दुर्योधन भी थे, ये थे, but nobody had a change in heart. Only Arjuna could surrender and the Pandavas. Why? Because they were devotees of Krishna. So first thing in spiritual life is to have faith. जब तक ये faith नहीं होगा ना, you'll never go ahead. जैसे बोलते हैं ना, चैंट करने को बोल दिया हरे कृष्णा महामंत्र, अरे कुछ चेंजेस होता है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो चैंट करने का, एंड अगर चेंज नहीं होता है देन यू कैन से कि नहीं होता है. तो ऐसा स्टोरी था प्रभुपाद के टाइम पे. तो दिस इज लाइक 70s. सो रशिया में मूवमेंट बहुत फैल रहा था. सो 2 सीक्रेट एजेंट्स को इस्कॉन में भेज दिया. इन द सेंस वहाँ के सेंटर में था, उस समय टेम्पल्स नहीं थे वहाँ पे, तो सेंटर में. सो 6 months दे वर देयर एंड दे बिकेम डिवोटीज. नौकरी छोड़ दी, बोले दिस इज मच बेटर. So this was the potency of that. So ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है कि where devotees heart transformed and ये वो कोई चैलेंज करने के लिए आए. ऐसे एक डिवोटी थे यहाँ पे, अभी he left his body, तो he went, प्रभुपाद के हाथ में ना रोलेक्स वॉच थी, क्रॉस मैदान फेस्टिवल था चर्च गेट में जो है ना, तो वहाँ पे he went there to प्रभुपाद to take his रोलेक्स वॉच कि चोरी कर लेगी, वो रॉबर. तो फिर पिक पॉकेट, सॉरी नॉट अ रॉबर, पिक पॉकेट. तो चोरी करने की अच्छा, तो प्रॉपर्ट ने समझ गए ऑब्वियसली, तो बोले यू वांट माय रोलेक्स वॉच, कम हमारे साथ ही रहो. एंड देन ही बिकेम अ डिवोटी. सो अ पिक पॉकेट, दिस इज ऑल मिरेकल्स हैपनिंग. पिक पॉकेट वाला रोलेक्स वॉच लेने के लिए आता है, एंड ही बिकेम अ डिवोटी एंड ही सर्व्ड लाइफ लॉन्ग इन द टेम्पल. सो दिस इज द पोटेंसी ऑफ द स्पिरिचुअल प्रोसेस. सो वी फिनिश्ड नाउ हियर. So the key takeaway from the thing is कि जब भी आप राधा रास बिहारी को देखो तो can understand कि Krishna is unborn. He appears in his transcendental body. So today when you go after the lecture, you see, you can one more aspect of Krishna you can look at. होगा? So you can look it from that angle कि राधा रास बिहारी, they are unborn form, in a transcendental form that is there.
एंड सो मर्सीफुल. काफ़ी लोग DT वर्शिप क्रिटिसाइज करते कि ये क्या है, वेस्ट ऑफ. बट दिस इज सो यू कैन रिलेट टू इट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट टू ऐसा मन में कभी कभी. बट वेन यू सिट देयर इन द ऑल्टर एंड सी द DTs, इतना यू फील सो बेटर बिकॉज यू कैन एक्चुअली रिलेट टू हिज फॉर्म, हाउ ही इज ड्रेस्ड, व्हाट ही इज वेयरिंग एंड ऑल दैट. सो दैट्स हाउ यू शुड सी कि क्या जैसे आउटफिट्स भी होते हैं तो क्या मैचिंग किया है, क्या पहना है, मुकुट कैसा है, कैसे उनका मूड है. दैट ऑल यू कैन ऑब्जर्व. और जो ड्रेसिंग भी होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है. इफ़ यू लुक एट ओल्ड फोटोग्राफ्स ना 10-10 साल पुराने, तो द ड्रेसिंग वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे. So that you can search on the net. Actually, I saw it in Prabhupada's daughter, where Radhadas Bihari full pant. I said, थोड़ा होता है जगन्नाथपुरी में होता है. जगन्नाथपुरी की जो GTs है ना, अभी वो विग्रह चेंज हुआ था. आई थिंक सो सम 7-8 years, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो अभी मैं देखने गया था, तो इट बिकम अ बिट फैट अगेन. तो उससे पहले वाली DTs देखा था जो, सो जगन्नाथपुरी में एवरी 14 to 18 नव वर्ष बोलते हैं उनको, नवक, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड, बट DTs चेंज होती है जो वुडन DTs है. तो लास्ट वाले एकदम फैट थे, ये वाले थोड़े थिन लगे मेरे को. सो दिस ऑल्सो हैपन्स. सो जो DT वर्शिप करता है उनको पता होता है कि ना लॉर्ड इज़ हैप्पी, कभी एकदम हैप्पी मूड में रहते हैं, कभी नहीं. यू कैन गेट. नहीं ये ओरिजिनल है. नथिंग ऐसे इधर नहीं होता, ये तो मार्बल का है. दिस वेंट टू मेलबर्न एंड केम बैक. सो ये टेम्पल के लिए ये DT प्रभुपाद की फेवरेट थी. तो राधा रास बिहारी इज फेवरेट ऑफ शीला प्रभुपाद. यूज्ड टू कैरी हिज पिक्चर वेर एवर यूज्ड टू ट्रैवल. तो ही सर्कल द ग्लोब 14 times. तो हमेशा राधा रास बिहारी की फ़ोटो रहती थी. एंड ही वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ प्लेस. तो ये DT मेलबर्न गई, आई थिंक सो इधर उधर गई, फाइनली इट अराइव्ड एंड इट्स नाउ हियर. दैट्स हाउ इट इज. सो एनी अदर क्वेश्चंस और वी क्लोज द क्लास? So we close the class by loudly chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Hare Krishna, online I'm closing the class. Yeah.